Hello students, my name is Naveen and welcome to our YouTube channel. So in today's tutorial, we are going to cover one of the most important feature of the object-oriented programming, that is inheritance. Right? Now, what is inheritance first? So in inheritance, we create a new class from the existing class, right? We create a new class from the existing class where the existing class is known as a base class or a parent class, and the new class which is derived from the parent class is known as a child class, right? तो हम क्या करेंगे, we will make a new class. पुरानी एक क्लास से हम एक नई क्लास बनाएंगे, राइट? तो जो नई क्लास होगी उसे हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड क्लास, और जो पुरानी क्लास है वो मेरी क्या होगी, बेस क्लास, राइट? सो इन पाइथन when a class is derived from another existing class, the new class inherits the feature from its base class. तो मेरे पास एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, जब मैं उससे नई क्लास बनाऊंगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस में क्या होगा, नई क्लास क्या करेगी, अपनी पुरानी क्लास के सारे फीचर इनहेरिट करेंगी, राइट? तो रियल लाइफ में भी क्या होता है, पेरेंट और चाइल्ड में जो रिलेशन होता है उस फीचर को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस. तो कई बार हम क्या बोलते हैं किसी चाइल्ड को देख के कि ये चाइल्ड अपने पापा पर या अपने मम्मा पर गया, तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं, हम बोलते हैं कि उस बच्चे ने, उस चाइल्ड ने अपने पेरेंट्स के कुछ फीचर इनहेरिट किए हैं, राइट? वो फीचर किसी भी टाइप के हो सकते हैं, राइट? तो ऐसा ही जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो नई क्लास है वो अपनी पेरेंट क्लास के फीचर इनहेरिट कर लेती है. तो फीचर का मतलब क्या है, नई क्लास के अंदर पुरानी क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो इनहेरिट होके आ जाएंगे, राइट? सो दिस इज द सिंटेक्स टू क्रिएट अ न्यू क्लास, राइट? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्लास बनी हुई है जिसका नाम है बेस क्लास, बेस क्लास, और ये उसके मेंबर है, राइट? अब नई क्लास कैसे बनेगी, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट ए न्यू क्लास. नेम ऑफ द न्यू क्लास, लेट्स से नेम ऑफ द न्यू क्लास इज derived class, and inside the parentheses we will mention the name of the parent class, जो पुरानी क्लास एग्जिस्टिंग क्लास है. तो लेट्स से द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास इज बेस क्लास, तो here inside the parentheses we will write the name of the base class and then the member of the base class. तो अब क्या होगा कि जैसे ये क्लास बनेगी, इस क्लास के अंदर इसके अपने मेंबर तो है ही है, साथ ही साथ ये पुरानी क्लास के मेंबर को भी इनहेरिट करेगी. तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्लास के भी मेंबर कुछ, इस क्लास के भी मेंबर जो है इनहेरिट होके यहाँ पे आ जाएंगे, right? So this is the inheritance. Now let us see how many type of inheritance is there in the Python, right? So basically there are 4 type of inheritance in the Python: single level inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, and hierarchical inheritance, right? The first type is single. So single inheritance में क्या होता है, one parent one child relationship. So this is the example of single inheritance, right? Where we have one parent and one child. So one parent one child inheritance is known as single level inheritance, right? So in this case, let's say this is the base class, right? This is the base class and this is the derived class, right? Or you can say this is the parent class and this is the child class. Now this derived class is derived from the base, so it will inherit all the member of the बेस क्लास. तो इसके जितने भी मेंबर हैं वो इसके अंदर भी आ जाएंगे, राइट? तो जैसा रियल लाइफ में पेरेंट और चाइल्ड में होता है. देन वी हैव ए मल्टीपल इनहेरिटेंस. So multiple inheritance is a second type of inheritance. This is the example of multiple inheritance. So there you can see multiple parent one child, multiple parent one child. तो इस child के multiple parent है, right? This you can say this is the base class 1, right? And this is the base class 2 and this is the child 1. अब ये चाइल्ड ने क्या किया, और ड्राइव्ड क्लास कह सकते हो आप. तो इस चाइल्ड ने दोनों बेस क्लासेस से, दोनों पेरेंट से फीचर इनहेरिट किए. इसके मेंबर भी इसके पास इनहेरिट होके आएंगे और इसके मेंबर भी इनहेरिट होके आएंगे, राइट? देन वी हैव ए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, द थर्ड वन, दिस वन. दिस इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. तो मल्टी लेवल में देयर यू कैन सी देयर आर मल्टीपल लेवल्स लाइक दिस, राइट? तो यू कैन से दिस इज द ग्रैंड पेरेंट, ठीक है? ग्रैंड पेरेंट के बाद देन वी हैव पेरेंट एंड देन वी हैव ए चाइल्ड. सो चाइल्ड, पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट, राइट? तो पेरेंट ने अपने पेरेंट से फीचर इनहेरिट किए, इसने इससे फीचर इनहेरिट किए, राइट? उसका चाइल्ड ने अपने पेरेंट के भी और ग्रैंड पेरेंट के, यानी कि इसके पास ये वाले फीचर तो आई, साथ ही साथ अपने पेरेंट के फीचर भी इनहेरिट हो गए, राइट?
तो चाइल्ड अपने पेरेंट के फीचर भी इनहेरिट करेगा और अपने ग्रैंड पेरेंट के भी फीचर इनहेरिट करेगा, right? Then we have a hierarchical inheritance, the fourth one, this one, right? So here we have multiple child from one parent. So let's say this is parent 1, and then we have child 1, child 2, and child 3, right? So this is the hierarchical inheritance. So all the child will inherit the feature from their parent, right? So such kind of inheritance is known as hierarchical inheritance, right? So in this tutorial we will create a base class, then we will create a derived class, right? So I'm giving you the basic example, right? So let us try to, I'm going to open the idle. So let's say we have a base class. मैं यहाँ पे एक base class बना लेता हूँ, right? Class base, right? And this class is having one member. अभी मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? उसके बाद फिर हम आगे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे वन बाय वन, राइट? मेरे पास सिर्फ एक ही मेंबर है, लेट्स से def f1, right? And you know the first argument is always self, which represent the calling object. Then here just printing a message. तो मैसेज मैं क्या दे रहा हूँ, इनसाइड पेरेंट क्लास, राइट? जिससे पता चल जाए कि मेरी जो फंक्शन के अंदर मैसेज कौन सा आया है, किस फंक्शन का मैसेज आया, राइट? उसके बाद नाउ here I am going to make a new class, I am going to create a derived class, और I am going to make a child class, right? So name आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक मीनिंगफुल नेम लिया, right, for the understanding purpose, and this is derived from the base class, right? And here I'm going to make a function, let's say name of the function is f2 self, and then here I'm just printing a message, and the message is inside the derived, वहां पेरेंट लिया, चलो यहाँ चाइल्ड ले लेते हैं, इनसाइड दी चाइल्ड क्लास, राइट? अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नाउ हेयर आई एम गोइंग टू मेक दी ऑब्जेक्ट, राइट? तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से मैं दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया लेट्स से पहले b1 इज इक्वल्स टू नेम ऑफ द क्लास इज बेस, राइट? उसके बाद मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया d1 इज इक्वल्स टू derived, right? So now if I call the f1 function through the object of base class through the b1, yes it is possible. If I write b1 dot f1, this is quite possible. And in the same way, if I try to call f2 through the object of derived class, that means if I write d1 dot f2, yes again it is quite possible, it should work, right? So let us try to run the code. So here you can see, जब मैंने लिखा सबसे पहले b1 डॉट f1, तो b1 क्या है मेरा, b1 इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास। सो बेस क्लास का फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे आ गया इनसाइड पेरेंट क्लास। जब मैंने लिखा d1 डॉट f2, सो d1 इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास, तो उस वे में आपका क्या हो गया, आपका चाइल्ड क्लास का। तो नॉर्मली इसमें तो कुछ इनहेरिटेंस लगी नहीं मुझे, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, नाउ हेयर यू नो दैट इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मेरे पास इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो आपकी चाइल्ड क्लास है, द चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द मेंबर ऑफ द पेरेंट क्लास, राइट? तो लेट मी ओपन इट, राइट? तो मैं कहता हूं कि जो मेरा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है d1, दिस d1 कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ द बेस क्लास आल्सो, राइट? तो मैं अभी बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट था मैं इसे कमेंट कर देता हूं, तो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। अभी मैंने देखा कि d1 के थ्रू इट इज पॉसिबल टू एक्सेस द f2। नाउ थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास आई कैन आल्सो एक्सेस द मेंबर ऑफ द बेस क्लास, राइट? व्हाई इट इज सो, क्योंकि यहां से ये जो फंक्शन था f1, ये भी इनहेरिट होके मेरे पास डिराइव्ड क्लास के अंदर आ गया। तो जब मैंने डिराइव्ड क्लास बनाई, डिराइव्ड क्लास जो मैंने बनाई वो डिराइव्ड किससे हुई है, बेस क्लास से। दिस डिराइव्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम दी बेस क्लास। तो जब बेस क्लास से बनाई तो बेस क्लास के मेंबर भी डिराइव्ड होके आ जाएंगे मेरी चाइल्ड क्लास के अंदर, डिराइव्ड क्लास के अंदर।
right? So that is why it is possible now to access the member of the derived class through the object of the derived class, as well as to access the member of the base class. यानी कि D1 के थ्रू मैं ड्राइव्ड क्लास के मेंबर को तो एक्सेस कर ही पा रहा हूँ, और D1 के थ्रू अब मैं बेस क्लास के मेंबर को भी एक्सेस कर पाऊंगा, राइट? सो लेट अस ट्राई टू कॉल दी मेंबर ऑफ दी बेस क्लास. तो अब मैं D1 के साथ लिखता हूँ, सो D1 डॉट F1. नाउ लेट अस सी वेदर इट वर्क और नॉट, क्योंकि इनहेरिटेंस है तो ये काम करना चाहिए. सेव करता हूँ मैं उसे, रन करता हूँ. सो देयर यू कैन सी इट इज वर्किंग नाउ. अब आपका D1 के थ्रू, तो D1 के थ्रू मैंने F2 को तो कॉल किया ही किया, और D1 के थ्रू ये F2 कॉल हो रहा था यहाँ पे, और D1 से ही मैंने D1 ऑब्जेक्ट से मैंने पेरेंट क्लास का भी फंक्शन, ये देखो ये पेरेंट मैसेज आ रहा है और यहाँ पे चाइल्ड. ठीक है, तो ये वाला फंक्शन भी कॉल हो गया, क्योंकि ये फंक्शन जो था आपका इनहेरिट होके यहाँ पे गया था. अब D1 के थ्रू, तो D1 जो था आपका, वो F2 को भी कॉल कर सकता है और साथ ही साथ F1 को भी कॉल कर सकता है, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इनहेरिटेंस, राइट? तो इनहेरिटेंस में क्या होता है? इनहेरिटेंस में द चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द फीचर्स ऑफ द बेस क्लास, राइट? सो दिस इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ द सिंगल इनहेरिटेंस, क्योंकि मेरे पास एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, जो मैंने फर्स्ट टाइप बताया था. चाइल्ड क्लास क्या होती है, सॉरी सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है? सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड. तो यहाँ पे आप देखो एक ही पेरेंट है, एक बेस क्लास है और एक ड्राइव्ड क्लास है. सो इन दिस वे दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ द सिंगल इनहेरिटेंस. ठीक है, तो इनहेरिटेंस देखने के लिए बेस्ट एग्जांपल था. सो इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल गोइंग टू कवर सम मोर ऑन द सिंगल इनहेरिटेंस. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करेंगे. So I will try to add the constructor inside the base class as well as in the derived class, right? क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं. तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वो हम देखेंगे. अभी फिलहाल इतना ही. अंडरस्टैंडिंग के लिए आई थिंक इट इज क्लियर. इन केस यू हैव एनी डाउट, right, you can send your doubt or you can send your queries in the comment section, right? So thank you student, thank you for watching.